As a metaphor for the cinema, the window refers to an idea of cinema's inherent realism, window on the world. My first cinematic experience happened when I saw the ocean from a moving train. I was 10 years old. I was just looking towards the ocean, transiting between the states of sleep and wakefulness, stasis and movement, presence and absence. Can't things exist without their opposites? Is existence relative? When mind keeps silent in a motionless world, it hopes for nothing. Then everything is reflected and arranged in the unity of its nostalgia. ايزي 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 كلا ايزي. Playing means understanding life. Life which is based on the oppositional logic of difference. It is an infinitely variable process in which there is never any ultimate victory or performance, but only the repeated and unrepeatable working of the space between order and chaos, freedom and constraint, acceptance and possibility, permanence and contingency. For a football player, the only important thing is to play, to live his emotions. Nothing else matters. Beyond the touchline, there is nothing. If an actor gives his performance without knowing that he is in a play, then his tears will be real tears and his life a real life. Like an actor, they live life free of the illusion that their achievements might be recognized in the future or after their death. They live with the absurd awareness that nothing they do has any significance beyond the act itself. Sisyphus is cursed by the gods to roll a boulder up a mountain. Watching it come crashing down, walk back down the mountain after it, and roll the boulder up again. His life is an endless series of repetition. Is there any inherent meaning in the act of doing the same thing over and over again? As Camus says, one must imagine Sisyphus happy. Is Sisyphus actually happy? Or is he content?
The kind of happiness that could arouse envy in us exists only in the air we breathe, among people we could have talked to, women who could have given themselves to us. Mankind does not strive for happiness, only the utilitarian does. Image of happiness is indissolubly bound with the image of redemption. आपने ये कहानी तो सुनी है अमृत मंथन का। उस टाइम पे उन्होंने एक पर्वत का यूज़ किया था मतने के लिए और सांप को लिया। जो पर्वत था वो ढह रहा था अंदर तल अमृत मंथन का। तो विष्णु भगवान ने क्या किया था, ये टोटास का रूप लेके उसके नीचे चले गए ताकि वो नीचे ना जाए, पूरे पर्वत को अपने पीठ पे ले लिए। शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को एक वरदान दिया कि जहाँ पे मैं रहूँगा वहाँ पे आपकी पूजा होगी। तो आप शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाओगे वहाँ पे कछुआ रहता है। ये मेरी नानी लगेगी। इनके शरीर में वो भगवान का एक वास रहता था। वो बोले और कुछ ना हो ऐसे नहीं होता था। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे गांव में। एक बार स्टॉर्म हुआ, पूरा डूब गया था पूरा। तो सिर्फ इन्होंने बताया था कि कौन दो लोग हैं जो तैर के आ रहे हैं, बाकी के सब डूब गए। तो इतनी शक्ति थी इनमें, तो इनका इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम लोग इनकी पूजा करते हैं। एक बार ऐसे हुआ था कि गांव में चिकन पॉक्स आया था, जो देवी बोलते हैं हम लोग। उसमें सिर्फ बच्चे मर जाते थे, बेटे जो रहते थे वो मर जाते थे, बेटियों को कुछ नहीं होता था, बेटे मर जाते थे। तो उस टाइम पे पाटिल का, जो पहले के ज़माने में पाटिल रहते थे गाँव के, फिर उन्होंने भी सोचा कि भाई क्या करें, सब बच्चे लड़के मर रहे हैं, लड़कियाँ कुछ नहीं हो रहा है, लड़के मर रहे हैं। ऐसे सब लड़के मारेंगे तो फिर अपनी पीढ़ी कैसे चलेगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पूरे मंडली के साथ वो यहाँ पे आए और इनसे बात की। फिर इन्होंने पूजा वगैरह करने के बाद इन्होंने ये जो सामने रखा है ना चांदी का, वो हाथ में लेती थी पूजा के लिए, और गले में लगाने के बाद वो भगवान का वास उनके अंदर चला आया था। फिर वो निकल के वो अपने हाथ में ले लेती थी, और जो भी क्वेश्चन पूछे वो सिर्फ ऐसे रोटेट करती थी, इसको स्विंग करती थी, तो वो उड़ के उसके कान के पास आके रुक जाता था और उसको जवाब देता था। उन्होंने पूजा वूजा करने के बाद उनको भगवान ने ये आंसर दिया कि पूरे गांव में एक वीक तक कोई फ्राई नहीं करेगा, जो हम लोग फ्राई करते हैं कोई फ्राई नहीं करेगा गांव में, और मुझे गांव में राम मंदिर चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने मांगी, हम लोग के जो भगवान है उनके कान में जाके उन्होंने उस रोटेट से बता दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं ये बंद करता हूँ, बोलो। तो एक वीक तक पूरा फ्राई करना बंद कर दिया, और एक वीक के अंदर ही बच्चे मरने स्टॉप हो गए। A repetition of affirmations leads to belief. And once that belief becomes a deep conviction, things begin to happen. Culture is not inherited, it is learned.
ये भैया टोपी वाला, ये मालिक है। काय मासा करू? मासा आणि सुरमई. ढाकर जाना देबो कशी हे देखो ऐसा बर्फ कारखानशी The food choices of different cultural groups are often connected to ethnic behaviors and religious beliefs. What one eats or chooses not to eat communicates aspects of a person's identity or emotion in a manner that words alone cannot. Food choices tell stories of families, migrations, assimilation, and resistance. मेरा बीबी है, 2-3 बच्चे हैं। कहाँ पे रहता है गाँव में गाँव खेड़े कहाँ? गाँव है हमारा। हाँ खेड़े गाँव है, खेरी गांव ये किधर को है पनवेल के आगे पनवेल में है। हमारा तालुका ही पनवेल है। हाँ हाँ राइट हम कोली है, हाँ हाँ ये आगरी है। ये फर्क रहता है ना जात जात में। अच्छा अच्छा 8 दिन में 10-12 हजार ऐसा कमाता था। तब भी मेरे से बात कोई नहीं करता था। भाई कोणूच नाही, आईच नाही, बापूच नाही, कोईच नाही, बात नहीं करे। इतना कमाता ये भी नहीं बात करता था। मैं सौतेला है ना, मेरे से कोई नहीं बात करता। बीबी आएगा तो ही बात करेगा ना मेरे से, आएगा ना बराबर। बात करने के लिए शादी की कोई नहीं बात करता कि क्या करेगा। आपसे कोई बात नहीं करता था फिर आपने शादी किया ठीक है फिर आपका बीवी आपसे बात करना शुरू किया तो आप बातें क्या करते थे उससे बात क्या करेगा मुझे तेरे को मालूम नहीं क्या यार ऐसा बात करता है, रात को करता है ना। बातें क्या करता है हाँ? ऐसा ही कुछ भी। तुम शादी करोगे तब समझेगा तेरे को, बराबर है कि नहीं? हाँ? ए भाई तुम कितनी कक्षा में? हम फिल्म पढ़ रहे हैं फिर ये दूसरा तुम्हारे साथ है वो फिल्म ही है। सब फिल्म पढ़ रहे हैं फिल्म सिनेमा सिनेमा फेल है। आउट ऑफ